Hi, my name is Vishish Kumar. I'm the co-founder of Unite Media Marketing Agency. I have been helping online coaches from past 6 years now to reach at least 3 lakh to 5 lakh rupees per month using our ESA system. After having multiple meetings with online coaches out there, I have got a few sets of questions that I get regularly from these coaches. And I'll tell you, the answers hold the power to transform your coaching business, and it can go from 0 to 2 lakh, 3 lakh, and even 5 lakh rupees a month. Well, stick till the end and you'll understand why. Question number 1: what should be my number one priority in my coaching business? Simple. Sales should be number one priority. Just think about it. In order to build a business, you need to generate revenue. If you're not generating revenue, you are not able to do anything. आपका एक प्रोडक्ट बन रखा है, आपको पता है मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, लेकिन आप अगर उन्हें बेचना नहीं जानते या नहीं बेच पा रहे हो तो बॉस आप आज नहीं तो कल क्विट करने वाले हो अपना कोचिंग बिजनेस. सिंपल. एंड दिस इज द ट्रुथ. जो लोग बोलते हैं मैं पहले कोर्स बना लेता हूँ, मैं पहले ये कर लेता हूँ, मैं पहले वो कर लेता हूँ, बुलशिट. रियलिटी इज यू नीड टू स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट. अब चाहे आप कैसे भी सेल करो, आप ऑर्गेनिकली कंटेंट बनाओ, आप एड्स रन करो, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, वट एवर यू डू, whatever makes sense to you and whatever gets you sales, do that thing. Ethical होना चाहिए for sure, but make sales, क्योंकि आप उससे पैसे बनाओगे तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो. अगर आपको 0 से 10,000 रुपीज़ पर मंथ पे आना है, you need to make sales. अगर आपको 10,000 से 10 लाख रुपीज़ पर मंथ पे आना है, you need to make sales. अब उसके लिए और बहुत चीज़ें होती हैं, we'll discuss that thing later or in some other video. But you got to understand, sales is the number one task for you as a business owner. Okay. Second question: which platform is the best platform for me? First of all, ask yourself, आपकी टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है? Is it Instagram? Is it LinkedIn? Is it Facebook, YouTube, or Twitter, or whatever it is? Now, the reality is in India, if you are targeting people under age of 55, your platform should be Instagram, because that platform have majority amount of population over there. Okay. इंस्टाग्राम हर कोई चला रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज जाता हुआ स्टूडेंट हो, चाहे वो जेनजीज हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, या हाई, लाइक आई हैव अ क्लाइंट हु इज whose content is out there on Instagram, and a lot of people comes to her and she only works with CXO people, CXO level people like CEOs, CMOs, CFOs, those kind of people. And those people watch content on Instagram, they come to her and they buy from her. So Instagram is the best platform, but yes, there are people who are generating great amount of revenue through LinkedIn, from X, or from YouTube also. But you got to understand what is the most easiest way to create content. Create a 1-minute clip video. Second most important thing, everything at one place. You can have conversations on one place, you can have good content on one place, you can have good stories. स्टोरी इंगेजमेंट बहुत अच्छी होती है, वो इंस्टाग्राम पे होती है. तो आई वुड सजेस्ट डू इट ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि आप उस पर अच्छे से ऐड भी रन कर सकते हो आगे जाके. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन: रनिंग एड्स और ऑर्गेनिक marketing. It should not be a question of running ads or organic marketing. It should be organic marketing and running ads. You should have a combination of it, and I'll tell you why. Organic content builds credibility. अगर आप एक कोच हो, आपने अभी अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया, एंड उस पर कोई कंटेंट नहीं है, एंड यू हैव नो फॉलोअर्स, मैं या कोई भी जाके उसे देखता है, व्हाट दे वुड से, सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आएगी? यार ये बंदा क्रेडिबल है भी या नहीं? आई कांट सी एनी कंटेंट, मैं जानता ही नहीं हो, तो बहुत टाइम से कोई एक्टिव भी नहीं रहा है, ये कुछ है ही नहीं इसके पेज पे, तो उन्हें डाउट होने लगेगा. दैट मीन्स आपका कंटेंट आपकी क्रेडिबिलिटी शो करता है. आप जितने अच्छे अपने कंटेंट में दिखते हो, लगते हो और स्मार्ट सुनाई देते हो, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपके प्रोडक्ट की सेल होने की. अगर वो आप पे भरोसा नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, you won't get any sales. So make sure you are posting content on regular. First thing. Second thing, over here is running ads. आप रेगुलर एड्स रन करो. आप पैसे दे रहे हो प्लेटफॉर्म को कि मेरी कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक ले जाओ जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ कंटेंट.
अगर आप प्रॉपर कंटेंट बना रहे हो, अच्छा कंटेंट बना रहे हो और आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हो, आप पैसे दो प्लेटफॉर्म को, वो और लोगों को दिखाएगा। एंड आई एम टॉकिंग बिजनेस, आई एम नॉट टॉकिंग इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर गेम, वो अलग गेम है। यू आर इनटू कोचिंग बिजनेस। बिजनेस चलता है एक ही चीज़ से, यू आर एबल टू रीच टू दोज पीपल हु आर योर टारगेट ऑडियंस एंड यू आर एबल टू सेल देम। यही मोटिव है। अब आप उसे ऑर्गेनिकली करो या पेड तरीके से। आई प्रेफर पेड बिकॉज मे बी आई एम नॉट रियली ग्रेट एट गेटिंग योर अटेंशन, या लोगों की अटेंशन लेने का मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ना मैं सीखना चाहता हूँ। आई एम अ बिजनेस ओनर, आई वांट टू मेक मनी, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग कंटेंट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंटेंट बनाऊँगा एंड मैं उसे उसी हिसाब से बनाऊँगा जिस हिसाब से मेरी टारगेट ऑडियंस सुनना चाहेगी। ये नहीं कि मतलब मैं डांस भी करूँगा सो दैट वायरल हो जाए कंटेंट, मैं अच्छे गाने पे थोड़ा एक्ट कर दूंगा तो वायरल हो जाए कंटेंट और ज़्यादा लोगों को दिखा तो ज़्यादा लीड्स आएंगी। ऐसा नहीं होता। वी हैव डन दैट थिंग, इट वर्क्स हॉरिबल, इन फैक्ट इट डजंट वर्क। ओके, आपकी कोई रील वायरल हो गई और वो वायरल इस वजह से हुई क्योंकि उसमें आपने जेनजी के इमोशन को इवोक किया था, एंड दैट्स ऑल। जेनजी ऑडियंस ज़्यादा आ गई, वो पैसे ही नहीं पे कर सकती आपके कोचिंग बिजनेस पे, गया पानी में गया आपका सारा एफर्ट्स, एनर्जी और सब कुछ। सो मेक श्योर यू आर रनिंग एड्स ऑन राइट टारगेट ऑडियंस एंड आप सही मैसेजिंग के साथ अगर जाते हो, यू कैन जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ सेल्स। वी डू दैट, आवर क्लाइंट डज दैट एंड वी आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके, सो हैविंग बोथ एट द सेम टाइम इज गुड फॉर यू। कांट एन एजेंसी डू एवरीथिंग फॉर मी? ऐसे क्लाइंट्स के साथ हम काम नहीं करते, एंड मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर ये थॉट आपके पास भी है, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, ये क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना लोग सब कुछ दिखा रहे, बोल रहे हैं कि एआई सब कुछ कर देगा, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं, आप बैठे बैठे पैसा कमाओगे। आपको बस एक एजेंसी को पैसे देने हैं, वो सारा काम करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा होता तो हर कोई कर रहा होता है ऐसे, बट ऐसा होता नहीं। कोई एजेंसी कितना ही पैसा ले लेगी, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगी ना। मतलब मैं नॉर्मली इंडिया में बात करूँ, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कोई ले भी रही है, स्टिल इससे ज़्यादा पैसा लेके भी अगर मेरे पास मैसिव अमाउंट ऑफ बिजनेस आ रहा है, मैं देना चाहूँगा, मेरे को बता दो ऐसे कौन सा एजेंसी है जो सब कुछ करने के लिए रेडी है, मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होगी, बिकॉज ऐसी एजेंसी है ही नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर यू गाइज हु आर बिगनर्स एज ए कोच। अगर आप वेबिनार कर रहे हो, वेबिनार पे आपकी जगह कोई और बैठ रहा है, तो वही बिजनेस कर लेगा ना, आपको करने की क्या जरूरत है, वही पैसा बना लेगा। उसे ही ऐड रन करना है, उसे ही सारी चीज़ें करनी है, उसे ही कंटेंट बनाना है, उसे ही वेबिनार्स लेने हैं, उसे ही सेल्स कॉल करनी है, उसे ही रिमाइंडर कॉल्स करनी है। अगर ये सारी चीज़ें वो करेगा और आप सिर्फ बैठोगे, आपको लगता है ये बिज़नेस आप कब तक कर लोगे? नहीं हो सकता। एवरी पर्सन, एवरी बिजनेस नीड्स टीम, बट वो टीम एक सर्टेन काम करती है। अगर आपने मेरे को एज एन एजेंसी हायर किया है इन ऑर्डर टू जनरेट मोर लीड्स फॉर यू, तो मेरा काम है क्वालिफाइड लीड्स आपके पास लाके देना। मेरा काम सेल्स करना नहीं है, आपका काम सेल्स करना है। तो अगर एज अ कोच आप ये सोचते हो कि विशिष्ट मेरी सेल्स नहीं आ रही, विशिष्ट ने काम गलत किया, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। इफ आई एम गेटिंग यू क्वालिफाइड लीड्स, ग्रेट। इफ आई एम नॉट गेटिंग यू क्वालिफाइड लीड्स, आई एम नॉट डूइंग ग्रेट वर्क। बात खत्म, सिंपल। सो यू शुड बी वेरी अवेयर, ऐसे कंटेंट से बहुत दूर रहो जो बोलते हैं बैठे बैठे पैसे कमाओ, ये बकवास है। यू हैव टू फोकस एंड वर्क एट वन थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तभी आप उस पर अच्छे होते हो। पीपल पेज यू बिकॉज यू आर गुड एट समथिंग, पीपल डजंट पे यू बिकॉज आपको कोई एक स्कीम मिल गई है। देयर इज नो स्कीम आउट देयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई एम नॉट एबल टू क्लोज क्लाइंट्स, दैट मीन्स माई एड्स आर नॉट वर्किंग गुड। नो, यू डोंट हैव एन एड्स प्रॉब्लम, यू हैव अ सेल्स प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास लीड आ रही है, आप उसके साथ कॉल पे गए, आपने या तो आपने वेबिनार किया या तो आप 1-on-1 कॉल पे गए एंड आप सेल्स क्लोज नहीं कर पाए, उसने कोई भी बहाना दे दिया आपको, बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आपको लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है एंड ही और शी केम टू योर कॉल, तो माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग। द पॉइंट इज, अगर आपके पास क्वालिटी लीड्स आ रही है एंड आप सेल्स कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन सेल्स में इशू है। यू हैव टू लर्न सेल्स, मतलब सेल्स इटसेल्फ इज अ स्किल एंड सेल्स हर जगह आप यूज़ करते हो और आपको करना पड़ेगा। अगर आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर सकते, आप आगे टीम नहीं चला पाओगे। टीम अगर सही से नहीं चला पाए तो क्या ही होगा फिर, तो देख लो आप सिंपल सा एक फंडामेंटल समझो, देयर इज़ नो वे यू आर गोइंग टू सर्वाइव विदाउट लर्निंग सेल्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्स है, उसे सीखो, लीड जनरेट करो और सेल्स लाओ। और सेल्स सीखने के लिए भी आपके पास लीड्स होनी चाहिए, तो आपके पास लीड्स का जुगाड़ कैसे भी होना चाहिए, चाहे आप ऑर्गेनिक करो, एड्स करो, कॉम्बिनेशन करो, वॉट एवर इट इज। ओके,
सो योर फोकस शुड बी लर्निंग सेल्स. नाउ क्वालिटी लीड्स क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक क्लाइंट थी who was helping like working professional and getting promotions, and those working professionals should be in IT industry. तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया हुए. पहला क्राइटेरिया, क्या वो वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि IT इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, एंड दूसरा क्राइटेरिया, क्या वो प्रमोशन ढूंढ रहा है, क्या उसे प्रमोशन चाहिए. बस अगर ये दो क्राइटेरिया सही हैं, देन यू हैव अ क्वालिटी लीड. अगर वही लीड आपको बोल रहा है दे डोंट हैव द मनी टू पे यू, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम, यू आर नॉट एबल टू बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ देम कि वो आपसे बाय करें. उन्हें नहीं, वो दे आर नॉट सोल्ड आउट ऑन द आइडिया दैट यू कैन हेल्प देम आउट. यू गेटिंग मी? बिकॉज पीपल हैव मनी. आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, अगर कल को कुछ भी हो जाता है, उन्हीं का फ़ोन टूट जाए, आईफोन टूट जाए, वो आईफोन स्टोर पे जाएंगे या सर्विस सेंटर पे जाएंगे, उन्हें पता चलेगा 10 से 15 हज़ार रुपये की स्क्रीन लगेगी, अगले दिन ही वो स्क्रीन लग जाएगी, भले ही वो EMI पे हो या कैसे भी हो. तो पैसे हर किसी के पास होते हैं. अब पॉइंट आता है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू बिल्ड अ ट्रस्ट अराउंड देयर मनी, तो वो नहीं खरीदने वाले आपसे. उन्हें नहीं लग रहा कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर बंदा मुझे ये रिजल्ट ला के दे सकता है, और ये पर्टिकुलर बंदा मेरे को जेन्युइन ही नहीं लग रहा. अगर ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आएंगे तो आपको लग रहा है कि आप बाय करोगे. जस्ट थिंक, मैं बोल रहा हूँ कि आई कैन हेल्प यू टू गेट यू क्वालिफाइड लीड्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. ठीक है, आप मेरे पास आते हो, आप मुझसे पूछते हो, विशिष्ट आपने कितनों के साथ काम किया? नहीं यार, मैंने तो किसी के साथ काम नहीं किया. बट आप मेरे फर्स्ट टाइम हो, डाउट होगा. गुड. क्या आप पैसे पे कर सकते हो? डेफिनेटली यू कैन पे मी. यू कैन पे मी 15,000, 20,000, 30,000, 1 लाख रुपीज़. अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बिकॉज यू नो कि हाउ मच मनी अ कोच इज मेकिंग आउट देयर. एक एक्चुअल कोच जो पैसे बना सकते हैं. यू गेटिंग मी? तो अगर आपको पता है कि विशिष्ट कैन गेट यू लीड्स, अगर मैं 4 टेस्टिमोनियल्स आपको दिखा रहा हूँ कि दे हैव मेड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ माई स्ट्रैटेजीज, देन येस यू वुड ट्रस्ट मी. अब दूसरी बात आती है, क्या विशिष्ट क्या आप मेरे को इतने टाइम फ्रेम में करके दे सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ. कितनों के लिए आपने किया? मैंने इनके लिए किया, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए. एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है बिजनेस में. अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं, गुड, कोई नहीं, आप फ्री में किसी के साथ काम करो, सेशंस लो, आज देयर एक्सपीरियंस विद यू. कोई डिफरेंस नजर आया, छोटे से छोटा डिफरेंस भी एक अच्छा टेस्टिमोनियल आपका बन सकता है, एंड यू कैन गेट पेड फ्रॉम देम, और आगे आने वाले क्लाइंट से आप पैसे ले सकते हो. सो मेक श्योर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड बिल्ड ट्रस्ट इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस. तो क्वालिटी लीड्स का समझ आ गया. उन्हीं क्वालिटी लीड से आप पैसे कैसे बना सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया. नाउ दीज 5 क्वेश्चंस आर आंसर्ड एंड आई एम टेलिंग यू, अभी भी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखेंगे इस चीज़ को प्रॉपरली, जो नहीं फॉलो करेंगे इन चीज़ों को प्रॉपरली, एंड आज ही नहीं तो कल या तो वो अपना बिजनेस क्विट करेंगे या तो किसी और चीज़ में लग जाएंगे. कोई आएगा बोलेगा ये वाला फनल यूज़ करो, बहुत अच्छा काम करेगा. कोई आएगा बोलेगा आप लाखों कमा सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट से, आप वो करना शुरू कर दोगे. सिंपल है, अगर आप किसी को 1-on-1 कॉल पे बैठ के सेल नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कोई और चीज़ आपको सेल करके दे सकता है, अगर लग रहा है ट्राई करो, मुझे भी बताना. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि क्या चीज़ ऐसी काम कर सकती है, एंड आई कैन सेल like I can make lakhs and lakhs of money every single day. I would love to. Okay, I would like you to put those coaches and people in comments. I would love to talk to them and get more money. Till then, I hope you got some clarity कि आप कहाँ पे stuck हो रहे हो और क्या क्या चीज़ें आप improve कर सकते हो. फर्स्ट, सेल्स को अच्छा बना लो. सेकंड, लीड जनरेट करना शुरू कर दो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या एड्स हो. एड्स में पैसा लगता है, आई नो, but start doing it from the first day because it will help you, it will reduce your time frame in order to get success. Simple. आप मनी से मनी बनाना जब सीख जाओगे, आपको समझ आ जाएगा ना, मैंने 10 रुपये डाले तो मैंने 20 रुपये बनाए, ये डबल जो हुआ है. अब आप ये सोचो कितना पैसा आप डाल सकते हो और आप डालते रहो जब तक वो 1 रुपये का 2 रुपये बन रहा है. सिंपल. तो आपको ये फोकस करना है, मैंने इतने पैसे डाले, क्या इतने पैसे बन पा रहे हैं,
इतने पैसे बनाने के लिए मेरे को क्या सीखना पड़ेगा, क्या मेरे को सेल सीखनी पड़ेगी, मेरे को कंटेंट सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, सीखो, करो एंड डन. Make money and then tell me, Vishish, your video helped me out. I would love to know that. Okay, thank you.